الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وعلى تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو خالق کائنات ہے تمام تر تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے بات واضح کر دو نا کہ میرا عقیدہ کیا ہے تمام تر تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو مالک کائنات ہے پروردگار کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بس وہی وہ ہے جس کے سامنے ہر ذی روح کو سجدہ ریز ہونا ہے وہ معبود حقیقی ہے درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو خالق محمد و آل محمد وہ اللہ جس نے محمد و آل محمد کو خلق کیا جو ان کا خالق ہے جو ان کا مالک ہے جو ان کو بھی رزق دیتا ہے ہم مسلسل آج اپنی تقریر کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے کونوا مع الصادقین سر اٹھائیے کونوا مع الصادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ جانتے ہیں جب جھوٹی بات کی جائے تو غصہ کتنا ہوتا ہے بس سچوں کے ساتھ رہنا ہے سچی بات کہو اور سچوں کے ساتھ رہو سلام پڑھ لے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى تو جو بات بھی کی جائے دلیل کے ساتھ کی جائے بات میں فرق ہے اگر دلیل نہ ہو تو بات سچی بھی ہو تو جھوٹی لگتی دلیل ہونی چاہیے مسلسل ہم نے گفتگو کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ٹھیک ہے اللہ کی جو آیت قرآن میں موجود ہے تفسیرات نے مفسروں نے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جب پہلے محرم آپ کی گوشت گزار کیا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ ڈرنے کی چیز ہے سے ڈرا جائے پھر کیا مطلب ہے یہ ترجمہ کیوں کیا کچھ مفسروں نے کہا نہیں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے نئے چہرے ہیں نا اس لیے میں نے دوبارہ سے یہ اسٹارٹ لے کے کیا کہتے ہیں شروع سے بات کی جائے انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے اتقوا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو بلکہ اس کا معنی ہے پرہیزگار بن جاؤ یعنی جو کام اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ کرو جس کام سے منع کر دیا اس سے منع ہو جاؤ تو پرہیزگار ہے پرہیزگار کون ہوتا ہے وہی دوسرے لفظوں میں جو اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے احکام شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ پرہیزگار ہے وہ متقی ہے اور جو متقی ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے تھوڑا سا سر اٹھائیے جو متقی ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو متقی ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے ڈر کے معنی یہاں کچھ اور لیے جا رہے ہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نے کل اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے کل ہم نے جواب دہ ہونا ہے یہ ممبر ہے دوبارہ سے وہاں پہ وقت نہیں تھا بس جلدی سے ایک دو باتیں کر کے گزر جاؤں یہ ممبر ہے یہاں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ایسی روایت میں ہے کہ آپ میں جو بھی مطلب میں ہوں آپ ہیں جو بھی ممبر پہ بیٹھتی ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر میں بیٹھوں اور آپ نہ بیٹھے سب کو حق ہے یہاں بیٹھنے کا آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ یہاں بیٹھیے میں تو اس قابل نہیں ہوں بس یہ آل محمد کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں چند جملے ان سے خیرات میں لیتی ہوں اور یہاں آ کر آپ کی گوشت گزار کر دیتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں میں بہت گناہگار ہوں اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں
اور کل اللہ جانے کس آنکھوں سے میں نے آنکھیں ملانی ہے، یہ آنکھیں میری اتنی گناہگار ہے، کسے چہرہ لے کر جاؤں گی ان کے سامنے، کیسے سرخرو ہوگی، مجھے نہیں معلوم، اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں، کیونکہ جو بھی بات یہاں پہ کی جاتی ہے اگر اس میں سے کچھ بھی غلط کہہ دیا تو کل ہم آل محمد کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ سننے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایک مجلس تیار ہو گئی اور اس نے آگے پڑھ دیا، ایسا نہیں ہے، اس کی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ اس مجلس میں پڑھنے کا ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے، ایک ایک لفظ کے جواب دے ہیں ہم لوگ، ایک ایک لفظ کی، ہمیں بھول جاتے ہیں ہم نے کیا بات کی ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا ہے، بے شک اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ کے پاس ساری ویڈیو موجود ہے۔ جب ہم مکر جائیں گے کل تو میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، خدا رہا کوئی مائنڈ نہ کرے، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ جب کل میں مکر جاؤں کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا تو اللہ مجھے ویڈیو دکھا دے گا، یہ دیکھو ایسا ہی ہے نا۔ تو اس کی عظمت کو سمجھیے، جب بھی کسی کو کوئی بات ایسی لگے کہ وہ غلط فہمی ہو رہی، میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ کسی نے غلطی کی ہے، غلط فہمی ہو رہی ہے، اگر کسی کو کوئی جملہ سمجھ نہیں آیا، کوئی غلط فہمی ہو گئی، شور شرابے میں، بات چیت میں، جوش میں، جذبے میں کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کی بہت عزت اور احترام ہے، میں بالکل توہین نہیں کر رہی ہوں، پیار محبت سے بالکل اپنی بہنوں کے، اپنی ماؤں اور اپنی جو ہے وہ چھوٹی بچیوں کی طرح آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ دیکھیے جیسے ایک مومن کو سمجھایا جاتا ہے نا، اور مومن بھی آگے سے ویسا ہی جواب دے تو پھر مجلس میں اور مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اگر مجلس میں مناسب نہیں ہے پوچھنا تو آپ بعد میں سب سے ملتی ہوں، سب میری واقف ہے ماشاءاللہ سے، کوئی ادھر سے لے کے وہاں تک کوئی ایسی خاتون نہیں جس سے میری دعا سلام نہ ہو ماشاءاللہ سے۔ کچھ خاران ایسی بھی ہیں یہاں پہ موجود جن کے گھروں کے مشورے بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے واقف نہیں ہوں اور کوئی میرے ساتھ واقف نہیں، آپ کھل کے اپنی جو بات کی ہو، اگر میری غلط بات ہے تو مجھ سے کیجیے، اور اگر آپ نے کچھ غلط فہمی آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو آپ بھی کھل کر بات کر سکتے ہیں، صحیح ہے، بات کلیئر ہونی چاہیے تاکہ کوئی بات جو ہے وہ ایسے ہی فضول میں نہ پھیلے، تاکہ انتشار پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو باہر والوں کو موقع مل جائے گا، ایسے ہی ہے، تو ہم باہر والوں کو اندر نہیں آنے دیں گے، اپنے ہمیں جو جتنی بھی غلط فہمیاں ہمیں خود سے سلجھانی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے، بس یوں ہی بیدار رہیے گا، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، پرہیزگار رہو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ہم نے سچے دیکھنے ہیں کہ وہ سچے کون سے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ملنا ہے۔ کل ہم نے کس کے بارے میں گفتگو کی تھی؟ سچا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، بسم اللہ، یا رسول اللہ، جیتے رہے، بسم اللہ، خوش آمدید۔ اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جو علی علی کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، خدا ان زبانوں کو سلامت رکھے، ان چہروں کو سلامت رکھے جو نعرہ رسالت کہتے ہیں۔ ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، بس اللہ نے کہا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ہم نے کل گفتگو کی تھی صادق اور امین کے بارے میں، اچھا اس کے بعد مجلس نہیں ہے نا، اس لیے تھوڑا ایزی ہو کے بیٹھ جائیے، کیونکہ میں موضوع 3 دن ہو گئے موضوع شروع کی ہو لیکن آگے نہیں بڑھ رہی کیونکہ وقت نہیں ہوتا ہے، تو آج تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے موضوع کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ صادق اور امین، صادق کسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ سچا ہو، کوئی خبر دے تو وہ سچی ہو، یعنی مخبر ایسا تلاش کیجیے کہ جو خبر دے رہا ہے وہ سچی ہونی چاہیے، جھوٹا مخبر، جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی صبح جو ہے وہ ویدر والوں نے بتایا کہ بارش ہو رہی ہے، باہر نکل کے دیکھیں تو نہیں تھی۔ ہمیشہ جو مخبر رکھیے اسے سچائی کی بنا پہ رکھیے، وہ سچ بول رہا ہو، سچا ہو، صادق ہو۔ اچھا دوسری بات، امین ہونا چاہیے، یعنی جس کی امانت ہے اسی تک پہنچانا چاہیے۔ آئیے سچے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول ہے 40 برس اللہ کے رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا، بیدار ہو کے بیٹھیے گا، آپ جانتے ہیں وقت نہیں تھا، فضائل پڑھ نہیں سکی ہوں میں۔ صادق اور امین کی بات بتا رہی ہوں، اللہ کے رسول نے 40 برس کیا کیا؟ اعلان رسالت نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ معاذ اللہ، رسول نہیں تھے؟ کیوں اعلان رسالت نہیں کیا؟ اللہ کے جو نبی بھی آتا تھا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، جو نبی بھی آ رہا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں،
तबलीग कर रहा है, नबी क्यों खामोश है? खुद को मनवाया, बिस्मिल्लाह, खुद को मनवाना यानी अपने किरदार को मनवाना। सबसे बड़ी बात किरदार की होती है, यानी मैं आपके सामने आकर यहाँ बैठी हूँ तो मैंने अपने किरदार को मनवाना पड़ेगा पहले, फिर आप यकीन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी नत्थू वत्थू उठ के तो नहीं ना बैठ सकता। फिर दीन की तबलीग, फिर शरीयत की तबलीग, आम जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने पहले अपने आप को अमीन कहलवाया, फिर सादिक कहलवाया। जब अल्लाह के इस नबी को लोगों की तरफ से सनद मिल गई, ये अमीन भी है, ये सादिक भी है, सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, जो कहता है सच है, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया अब इनसे कहो कि अल्लाह एक है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने कुरान में कहा हो जाओ सच्चों के साथ। आप सच्चों के साथ होने के लिए बैठी है, ज़बानें खोल के बैठना, अपनी ज़बानों को मुअत्तर करते रहना। यानी अल्लाह के रसूल ने 40 बरस के बाद जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब ऐलान रिसालत करो, तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान रिसालत किया और उनसे क्या कहा कि कहो अल्लाह एक है, एक है, अल्लाह एक है, कहो कि अल्लाह एक है। आप मानना चाहिए था, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं ना कि बहुत सादिक है, हमेशा सच बोलता है, तो फिर सच्चे की हर बात को माना जाता है। और सच्चे ने कहा कि अल्लाह एक है तो मानो कि अल्लाह एक है। सच्चे ने कहा जहन्नुम है तो मानो जहन्नुम है। सच्चे ने कहा जन्नत है तो मानो, सो के नहीं बैठना, जाके बैठिए। सच्चे ने कहा जन्नत है तो मानो जन्नत है। सच्चे ने कहा मरना है तो मरना है। सच्चे ने कहा जिंदगी है तो जिंदगी है। सच्चे ने कहा बरज़ख है तो बरज़ख पर हक है। सच्चे ने कहा मैज़ान है तो मैज़ान तुलेगा। सच्चे ने कहा पुल सिरात है तो सिरात पे चलना होगा। सच्चे ने कहा कोई सिरात मुस्तकीम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो फिर मानो कि कोई है, माशाअल्लाह। या अली या अली या अली सच्चे ने कहा है कि ये सिरात मुस्तकीम है, तो फिर उस सिरात मुस्तकीम पर चलो ना। कब कहा था? जब अम्मार भी रसूल के साथ थे और कहा था अम्मार, कायनात जब एक तरफ जा रही हो, सारी कायनात के लोग एक तरफ चल रहे हो, अकेला अली एक तरफ जा रहा हो, तो अम्मार अली के पीछे चलना, यही सिरात मुस्तकीम है, माशाअल्लाह। ये भी सिरात मुस्तकीम है। अली के पीछे चलना यही सिरात मुस्तकीम है। किसने कहा? सच्चे ने कहा, बोलिए ना, किसने कहा? सच्चे ने कहा। मैंने कहा नहीं, रसूल ने कहा अली सिरात मुस्तकीम है, अली सिरात मुस्तकीम है। आगे चल के सच्चे ने एक और बात भी कही, उस सद्दीक ने, बात समझे नहीं आप, उस सद्दीक ने जो कभी झूठ नहीं बोलता, उस सादिक जो हमेशा सच बोलता है, उस सच्चे ने अपनी पाक और सच्ची ज़बान से कहा, उस सादिक और अमीन नबी ने, ऐ अली तुझसे मोहब्बत फकत वो करेगा जिसका लहू पाक होगा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो शरीफ होगा, जिसका लहू पाक होगा। कौन होता है शरीफ? कौन होता है पहले ये बताइए, शरीफ कौन है? शराफत कहाँ से मिलती है? माँ से। शरीफ वो होता है जिसकी माँ पाक हो। बच्चों, शरीफ वो होता है जिसकी माँ पाक हो। शरीफ वो होता है जिसकी माँ पाक हो। एक बंदा चलता हुआ आया और आके उसने रसूल के सामने अपनी बीवी की शिकायत की, कहा मैं कहीं तजारत पे गया हुआ था, तवज्जो चाहती हूँ अपनी बहनों की, कि मैं तजारत पे गया हुआ था, तो उस वक्त मेरे बीवी के बदन में ये हामला थी, बच्चा होने वाला था, तो एक बच्चा मेरा था जो कि खुश रंग है, यानी गोरा चिट्टा है, और जो दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। मैं तजारत पे चला गया और जब वापस आया तो बच्चा हो चुका था। अब मुझे शक है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। सबकी समझ में आनी चाहिए थी ये बात, थोड़ा सा मैदान में बैठिए। अब ये बच्चा मेरा नहीं है, रसूल का दलील, देखो इसका रंग वाइट है, इसका रंग काला है,
अच्छा जो जिनके बच्चे काले हो जाते हैं वो फेंक तो नहीं देते ना, काले भी तो बच्चे ही होते हैं ना। ये तो माँ से पूछिए जिनके बच्चे चाहिए में काले होते हैं, अल्लाह सबको गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे बच्चे दे। अच्छा उसने कहा कि काले, इसका रंग काला है और उसका गोरा। कहता ये बच्चा मेरा नहीं है। रसूल खामोश हो गए। कौन है ये रसूल? मेरे साथ बोल दीजिए, सच्चा रसूल है। मेरे साथ बोल दिया ना, ये सच हमेशा हम साथ लेकर चलेंगे पूरे इंशाअल्लाह। ये सच के ऊपर ही बात करेंगे। कौन सा रसूल है? सच्चा रसूल है। थोड़ी देर खामोश हुए। इतने देर में उसकी बीवी भी बैठी थी, शौहर भी बैठा था, दोनों बच्चे भी बैठे थे। इतने में मस्जिद का दर खुला। वाह वाह। मस्जिद का दर खुला। 4 या 5 साल या 7 साल का एक बच्चा वाह वाह। मस्जिद से दौड़ता हुआ आया। रसूल उठ के खड़े हो गए, बच्चे को गोद में लिया। रसूल को देख के शौहर भी खड़ा हुआ, रसूल को देख के बीवी भी खड़ी हुई। रसूल उसको देख के, सबको देख के बच्चे दोनों खड़े हो गए। रसूल ने कहा जा अपने बच्चे को घर ले जा, तेरा बच्चा हलाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारा बच्चा हलाली है, अपने बच्चे को घर ले जा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप दलील के बगैर बात नहीं करते हैं, आपने कोई दलील नहीं दिखाई, इससे बड़ी और दलील क्या हो? तुमने देखा नहीं जब हुसैन आया था खड़े हुए, तुम्हारी बीवी भी खड़ी हुई, दोनों बच्चे भी खड़े हुए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बच्चा भी, गोरा बच्चा भी खड़ा हुआ और काला बच्चा भी खड़ा हुआ, यानी जो भी हुसैन के एहतराम में खड़ा था। मैंने नहीं कहा, सच्चे रसूल ने कहा जो भी हुसैन का एहतराम करेगा उसकी माँ शरीफ है। यानी शराफत की निशानी माँ के शीर से मिलती है, माँ के दूध से पिलाई जाती है। अब जिसकी माँ शरीफ होगी वो हुसैन वाला है, और जो हुसैन वाला वो सच्चे रसूल को मानने वाला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे रसूल को मानने वाला है, उसकी माँ शरीफ है। माशाअल्लाह। अली अली कहते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सच्चे रसूल ने कहा कि जो हुसैन का एहतराम करे उसकी माँ शरीफ है, बेशक मोमिना है और उसके बच्चे मोमिन हैं। बेशक और रसूल ने कहा है अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, बेशक बेशक दुश्मनी मुनाफिक करेगा। बेशक। जो कुछ भी लाके मुनाफिक के सामने रख दिया जाए, हत्ता कि उसकी नाक भी फोड़ दी जाए, तो अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। बेशक। मोमिन की अगर नाक भी फोड़ दी जाए, कायनात की हर चीज उसके कदमों में लाकर रख दी जाए, तमाम दौलतें इकट्ठी होकर आ जाएं और अली वाले के कदमों में रख के कहा जाए कि अली की मोहब्बत छोड़ दो, अली को छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। बेशक बेशक। तो कहा जाए अली ले लो, अली नहीं लेगा। वाह वाह। ये सच्चे रसूल की सच्ची ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ है। अल्लाह ने कहा हो जाओ सच्चों के साथ। हमें कौन से सच्चे तलाश करते हैं जिनके साथ होना है। और हमने देखा कि रसूल घर में आए और आके कहा, ये वाकया बहुत मर्तबा पढ़ा जाता है लेकिन हर किसी का अंदाज अलग है, जितनी मर्तबा पढ़ा जाए ऐसे लगता है नया है, बस आपकी तवज्जो चाहती हूँ। जब रसूल घर में आया और आके कहा एक सैयदा मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, सच्चा रसूल है याद रखना, तो सोए बैठे हैं जाग जाइए, सच्चा रसूल और सच्ची बातें। अब ये रसूल घर में आया आकर ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, फातिमा मुझे यमनी चादर दे दो। अब फातिमा ने यमनी चादर रसूल को पहना दी, ओढ़ा दी, दे दी। रसूल लेट गए या बैठ गए, अब ये रवायत में नहीं है कि लेटे थे या बैठे थे, बाहर चादर के नीचे थे। लेट गए या बैठ गए, चादर के नीचे रसूल आ गए। थोड़ी देर गुजरी थी, शहजादा अमन घर में आए और आके अम्मा को सलाम किया, अम्मा आप मेरा सलाम। तवज्जो चाहती हूँ, तवज्जो, जो खामोश बैठी हैं तवज्जो, पिछले खिलाइए। रसूल घर में आए और चादर के नीचे हैं। शहजादा अमन घर में आए और आके अम्मा को सलाम किया, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। अम्मा ने जवाब दिया मेरे नूरे हैं आप पर भी मेरा सलाम, मेरे दिल की ठंडक मेरा सलाम। सुभान अल्लाह। अम्मा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नाना घर में मौजूद हैं, खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और चादर के नीचे तुम्हारे नाना मौजूद हैं। शहजादा चलते चलते चादर के करीब आ गए, इजाजत तलब करने के बाद चादर के नीचे। फिर दूसरे शहजादा शहीद करबला आए, अम्मा आप पर मेरा सलाम।
अम्मा आप पे मेरा सलाम। अम्मा ने सलाम का जवाब दिया। ए दिल की ठंडक, बेवाए दिल, मेरे हुसैन, मेरी आंखों के तारे, मेरा भी सलाम हो। उसके बाद अम्मा महसूस करो जैसे ये खुशबू मेरे नाना की खुशबू हो। आज चादर के नीचे तुम्हारे भाई और नाना है। उसके बाद अमीर कायनात, मौलाए मुत्तकियान, मौलाए कायनात, आपकी और मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब घर में आए। कुछ लम्हात के बाद जनाब सैयदा चादर के करीब गई। इजाजत मिलने में 5 हस्तियां चादर में नीचे आ गई। मैं सच्चे रसूल की सच्ची बात कर रही हूँ। यहाँ सब 5 हस्तियां जमा हो गई तो अल्लाह ने कहा और फातिमा तो अबूहा व बालहा व बनुहा। तो मैं आप चंद दिन पहले आपको सुना हुआ, मैं जल्दी से गुजर रही हूँ। बस ये जब कहा ना तो सच्चे रसूल की सच्ची जबान पे एक आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये वो रसूल है जो झूठ नहीं बोलता माज़अल्लाह। ये रसूल है जो हमेशा सच बोलता है। ये वो रसूल है जो सादिक भी है। ये वो रसूल है जो अमीन भी है। उस रसूल ने कहा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, अल्लाह ने हम अहले बैत से रिज्स को ऐसे दूर कर दिया जैसे दूर करने का हक था। तो झूठ क्या है? झूठ भी तो रिज्स ही है ना। झूठ भी तो निजात ही है ना, रिज्स ही है ना। तो वो अहले बैत से दूर है। माशाल्लाह। झूठ अहले बैत के करीब नहीं आ सकता। सच्चा रसूल और सच्ची बातें हमेशा पाक रखा, जैसे पाक रखने का। एक कदम और आगे चलिए ताकि मजलिस की मेराज हो जाए। एक मर्तबा ईसाई आए रसूल के मुकाबले में और आके उन्होंने कहा कि आपसे मुबाहला करना चाहते हैं, आप आइए और मिलकर दोनों वक्त जो है उनके और उनके दोनों मिलकर, जैसे आजकल मुनाजरा होता है और बातचीत होती है। जब कोई मामला अड़ जाता है ना, ये अभी पिछले दिनों में डॉक्टर अड़े हुए थे, हड़ताल की हुई थी, फिर बैठ के उनकी बातचीत हुई। हुकूमत की तरफ से भी चंद बंदे गए और डॉक्टरों की तरफ से भी चंद बंदे गए और आपस में उनकी बातचीत हुई तो फिर मामला तय पा गया। ऐसे ही उस वक्त का भी यही माहौल था। उन्होंने कहा कि आप भी आएँ और हम भी आते हैं। आप अब रसूल ने कहा कि हम में से कौन आएगा, उनमें से कौन आएगा, तो वही अल्लाह ने नाज़िल की। अल्लाह ने जब वही भेजी, सूरह माइदा में ग़ालिबन ये आयत है, शायद के मकरूर रही हूँ, आप तस्दीक कर सकती हैं जाके, बहरहाल कुरान में मौजूद है। अगर मैं भूल भी रही हूँ, याद आ रहा है कि सूरह निसा में या सूरह माइदा में ये आयत मौजूद है कि अल्लाह ने आयत भेजी कि हम अपनी औरतों को लेकर आते हो और तुम अपनी औरतों को ले आओ। हम अपने नफ्सों को लेकर आते हैं, तुम अपने नफ्सों को ले आओ। हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ। अब उनसे भी ये कहा गया, वो भी तैयारियां कर रहे हैं, इधर रसूल भी तैयारियां कर रहे हैं। ऐलान हुआ कि कल मुबाहले के लिए जाना है और वो भी अपने नफ्स लेकर आएंगे, हमें भी अपने नफ्स लेकर आ जाना है। और वो भी अपने बेटे लेकर आएंगे, हमें भी अपने बेटे लेकर जाना तवज्जो चाहते हैं। वो भी अपनी औरतें लेकर आएंगे, हमें भी औरतें लेकर जाना है। वो भी अपने मर्द लेकर आएंगे, हमें भी अपने मर्द लेके। अल्लाह के कलाम की तस्दीक कर रही हूँ कि अल्लाह ने ये आयत कुरान में भेजी कि हाँ तुम भी मर्द ले आओ, हम भी मर्द लेकर आते, तुम भी औरतें ले आओ, हम भी। अब रसूल किसको लेकर जाएंगे? आप खामोश हैं, पैदार होकर बैठा कीजिए, जब कुछ पूछा जाए तो जवाब दीजिए। रसूल अब किसको लेके जाएंगे? यानी जो बात सच्ची बात कहता है, मतलब आप में से कोई एक बहन हो, इतराज बच्चे को ले लें, ये जब बात करती हैं तो ये सच्ची बात कर रही हैं। और एक को मालूम है कि मैं अगर फर्ज करें मुझे ले जाए साथ, और एक को मालूम हो कि वहां जाके मैं कुछ गड़बड़ करूंगी, वहां जाके मैं कुछ गड़बड़ करूंगी, ये मुझे नहीं लेके जाएंगे। ऐसा ही है ना, ये मुझे नहीं लेके जाएंगे कि तुम घर में ही रहो, तुम्हारा घर में रहना ज्यादा बेहतर है, तुम उधर ना जाओ, क्योंकि वहां जाके तो मेरी इज्जत का जनाजा निकालोगे, तुम इधर ही ठीक हो, इधर ही रहो। अब रसूल किसको लेकर जाएंगे? रसूल तो सबको जानते हैं। तवज्जो, फज़ाइल का आखिरी जुमला है, अब आपकी ज़हन पढ़ूंगी। आप कहाँ तक मार्फत हासिल कर चुके हैं? रसूल अब किसको लेके जाएंगे? रसूल वो है जो सादिक भी है, रसूल वो है जो अमीर भी है, रसूल वो है जो सादिक भी है, रसूल वो है जो अमीर भी है, रसूल वो है जो सादिक भी है, रसूल वो है जो अमीन भी है। जाना किसे चाहिए? अपने बेटों को, अपनी औरतों को, अपने मर्दों को, अपने नफ्सों को। लोगों ने तैयारियां करनी शुरू की, कल मर्द जाएंगे,
बीवियां अलग से तैयार हो रही हैं, औरतें अलग से तैयार हो रही हैं, सहाबा अलग से तैयार हो रहे हैं, चाहने वाले अलग से तैयार हो रहे, सब तैयार हुए। कोई कह रहा है आज मैं जाऊंगा, मस्जिद में जमा हो गए, कल का दिन आया, सब मस्जिद में जमा है, रसूल मुझे कहेंगे, रसूल मुझे कहेंगे, रसूल मुझे कहेंगे, फज़ाइल का आखिरी जुमला है, आप रसूल मुझे कहेंगे चलने को, रसूल मुझे कहेंगे, सब तैयार हैं। मदीने में हर तरफ कोहराम है, औरतें अलग तैयार, मर्द अलग तैयार, बच्चे अलग तैयार, मुझे रसूल लेकर जाएंगे, मुझे रसूल लेकर जाएंगे, मुझे रसूल। मस्जिद में कोहराम मचा हुआ है, कैथरीन, हर तरफ लोग ही लोग हैं, हजूम हजूम हजूम, बस रसूल लेकर जाएंगे। इतने में रसूल अपने घर से निकले। सामने आपने जुमला वसूल ने किया, जुमला मैं आपने महफूज करना था और उसको महफूज करना चाहिए था। जैसे मैं चाह रही थी वैसे वसूल ने किया आपने जुमला। रसूल अपने हुजरे को छोड़े बाहर निकले, जैसे बाहर निकले आप गए, दरवाजा बजाया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहल बैति यतहहिरकुम ततहीरा। आप जानते हैं कि रसूल का कोई नस्बी बेटा नहीं है, रसूल का कोई अपना बेटा नहीं है, अल्लाह ने बेटे दिए और कज़ा कर गए। अब रसूल का कोई बेटा नहीं है, किसे लेकर जाएंगे? रसूल की तो बेटी है, आप बेटी को लेके जाएंगे, बेटे कहाँ से लाएंगे? रसूल ने दरवाजा बजाया, या अली, जो ऐसे नहीं, बेदार हो जाएंगे। रसूल ने, सच्चे रसूल ने सच्चों का दरवाजा बजाया, दस्तक दी, या अली एक दिन के लिए बेटे उधार दे दे, या अली एक दिन के लिए बेटे उधार दे, या अली तू भी मेरे साथ चल, या अली मेरी बेटी से भी कह मेरे साथ चल। अब बता इन 5 के अलावा कौन गया था? सबने रसूल थे। रसूल की गोदी में हज़रत मुस्तफा, रसूल की गोदी में हुसैन, रसूल की उंगली के साथ हज़रत मुस्तफा, रसूल के पीछे अली, अली के पीछे फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जुमले को मुकम्मल करती हुई जाती हूँ, आवाज़ मेरी भी बंद हो रही है। कि तुझ में और मुझ में इतना फ़र्क है मोहसिन, तुझ में और मुझ में इतना फ़र्क है मोहसिन, तेरा कुछ है अली, मेरा सब कुछ है अली। नारे हैदरी, 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 मौलाए मुश्किल कुशा की ज़ात पर बुलंद तर सलावत। यही आपने जुमला समाज फरमाइए, ऐसे ही जोश और खरोश के साथ। सच्चों का दरवाजा बजाया, बेटे उधार दे दें, बेटे लिए। कुछ रिवायतों में ऐसे हैं कि पहले रसूल थे, फिर अली थे, फिर फातिमा। कुछ रिवायतों में है कि पहले रसूल चल रहे थे, फिर फातिमा चल रही थी। यानी जहाँ रसूल कदम रखते थे वहाँ फातिमा कदम रखती थी, जहाँ फातिमा कदम रखती थी वहाँ अली कदम रखते थे। यानी ये नौरानी काफिला चला, तवज्जो चाहती हूँ, ये नौरानी काफिला चला और ईसाई भी चले, वो भी आ गए उस मुकर्रर जगह पर जो मुंतखब जगह थी। ये नौरानी काफिला भी आ गया। अभी चंद दिन पहले मुबाहिला गुजरा, तभी तो उसे मुबाहिला कहा जाता है। वो भी आए, ये भी आए। ईसाइयों के एक राहिब ने, एक पादरी ने, एक बड़े ने, एक रहनुमा ने, एक लीडर ने अब देखा ना इस नौरानी काफिले को, तो उसने अपने लोगों से कहा हमें लौट चलना चाहिए। मैं उन चेहरों को देख रहा हूँ जो इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे हैं, जो लोग इतने सच्चे हैं। अगर ये कहे ना पहाड़ को रेजा रेजा हो जा तो हो जाएगा। यानी इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे हैं। अगर इन्होंने हमारे लिए बद्दुआ कर दी तो मैं गारंटी देता हूँ कयामत तक के लिए
बच्चों को लेकर करें। बेशक बेशक अभी कल बयान करेंगे कि रसूल औरतों को क्यों और दूसरी औरतों को क्यों नहीं लेके गए, वरना यहाँ औरतों की बात की गई, एक औरत की बात नहीं। रसूल एक औरत को लेके गए, कल के लिए आप लिए होमवर्क है कि आप कल से सोच के आएंगे और जो आप लेकर आएंगे बिस्मिल्लाह इसके बारे और जो मेरे पास होगा हम आपस में बैठ के गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने कुरान में मर्दों की बात की है और यहाँ एक मर्द जा रहा है, वहाँ जमा का सीखा है, ज्यादा जाने चाहिए थी। ऐसा क्यों अल्लाह एक को लेके जा रहा है? बस मोमिनात वही सच्चे रसूल की सच्ची बेटी ऐसे उजड़ गई, ऐसे उस पर जुल्म डाले गए जैसा जुल्म किसी का नहीं। आज खुदा से उस बीबी को परसा दिया जा रहा है जिसका करबला से पहले सुहाग भी उजड़ गया था, गोद भी उजड़ गया। कूफे के बाजारों में मुसलमानों ने मुस्लिम इब्ने अकील को गले में रस्सी डाल के कूफे की गलियों में फेंका। रुकैया का सुहाग उजड़ गया करबला से पहले। जब बीबी करबला में वाक़या करबला में सबसे पहले बेवा हुई वो रुकैया, जिसकी गोद सबसे पहले उजड़ी वो रुकैया। अब मुझे नहीं मालूम मेरी किस बहन के साथ शहजादी आई बैठी है, जानू लगा के बैठी रो रही है, अपने बच्चों का पैसा वसूल कर रही है। आप सब माएं बैठी हैं, बच्चे छोटे छोटे थे तो जब बच्चों को तलाश किया गया तो 1 साल के लिए बच्चों को कैद कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म था कि बच्चों को ना ठंडा पानी दिया जाए और ना जरूरत पर खाना दिया जाए, बस इतना खाना दिया जाए जिससे जिंदगी गुजार सके और गर्म पानी पीने के लिए। वक्त गुजरता रहा, 1 साल गुजर गया। एक दिन दोनों शहजादे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसा ना हो कि हम इस दरोगे से जो रोज हमारे लिए खाना लेकर आता है इससे बात करें, इससे पूछते हैं, हो सकता है ये हमारे नाना का चाहने वाला हो। बच्चों में से छोटे बच्चों को बुखार था, बुखार से तप रहा है। दरोगा जब आया खाना लेकर तो बड़े शहजादे ने कहा, मोहम्मद ने कहा, तेरे छोटे भाई को बुखार है, वो बीमार है, ये दरोगा ऐसा कर अपनी बीवी को ले आ। कहा कैद खाने में? कहा आप शर्मा के रो रही हैं, आप सब माए बैठी, अब सब बहने, ऐसा करो अपनी बेटियों को भी ले आना, बस थोड़ी मेरी मदद कर देना। दरोगे ने कहा क्या मदद करेगी? कहा अपनी बीवी को ले आ, अपनी बेटियों को भी ले आ। जब तुम्हारी बीवी और बेटियां आ जाए कैद खाने में, उनसे कहना कि मेरे भाई का सर थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में रख, मेरा भाई बेहोश है। जब किसी माँ की गोद की गर्मी महसूस करेगा तो उसे होश आ जाएगी। दरोगा घर आया, अली का चाहने वाला था। मौला का चाहने वाला था, दरोगा घर आया और आके बीवी से कहा तैयार हो, ये मामलात है। बीवी रोने लगी, कहा हाँ, रात को एक बीवी मेरी ख्वाब में आई थी और उसने आगे मुझे कहा था, ए मोमिना, रोने का मकाम है, ए मोमिना, कैद खाने में मेरी 2 अमानतें हैं। कैद खाने का दरोगा तेरा शौहर है, तू हमारे चाहने वाली है, मेरा छोटा बच्चा बीमार है, थोड़ी देर के लिए कैद खाने में चली जाना, मेरे बच्चे का सर अपनी गोद में रखना और अपनी बेटियों को इर्द गिर्द खड़े कर लेना, और जब मेरे बच्चे को होश ना आए ना तो उनसे
कहना कि बहनें मिलने आई हैं, उनसे कहना कि माँ आ गई, मेरे बच्चे को होश आ जाएगी, बस थोड़ा सा एहसान कर दे। रोती हुई उसकी बीवी चली, कैद खाने में आई और बच्चे का सर अपनी गोद में रखा। जैसे ही सर रखा तो बच्चे ने अमक की आंखें खोल दी। जैसे लगा जैसे माँ आ गई है। बड़े भाई ने शुक्रिया अदा किया। जाने लगे ना तो बच्चे ने पूछा, इब्राहिम ने, मोहम्मद ने पूछा, ए दरोगा क्या तू यसरब वाले मोहम्मद को जानता है? मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ उसका। उसने कहा अच्छा फिर अली को भी जानता होगा? कहा हाँ मैं मौला को भी जानता हूँ, मेरे मौला है। कहा अच्छा फिर जनाब तालिब को भी जानता होगा? कहा जानता हूँ। अकील को भी जानता हूँ, जाफर को भी जानता, कहा जानता हूँ, सबको जानता हूँ। क्या बात है? इतना कहना था कि बच्चे रोने शुरू हो गए। बच्चों ने कहा करोगा अगर हम तुम्हें पता है तो हम उसी अली के नवासे हैं, उसी मोहम्मद के नवासे हैं। इतना सुनना था। दरोगा ने कहा मैं तुम्हें रिहा कर देता हूँ और जब काफिला शाम को निकले या सुबह को निकले मदीने के लिए तो उनके साथ मिल जाना। और बच्चे थे रास्ता भटक गए, काफिला ना मिला, उस जगह पे आ गए जहाँ पे दो रास्ते जाते थे। वहाँ बैठ के दरिया के किनारे वही औरत वो आई जो वहाँ मैंने वाकया पढ़ा। औरत अपने घर ले गई और घर जाके उसने बच्चों को खाना खिलाया, लिटाया, सो गई। एक जुमला वहाँ रह गया था जो मुझे यहाँ से लग रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे सारी रात अजरे रिसालत वसूल करते रहे। वो हारिस लईन कभी इस बच्चे के चेहरे पे तमाचे मारता था, कभी इस बच्चे के। आखिरी जुमला है मेरा, रोना आपका मुकद्दर है। बीबी रुकैया आई बैठी है, बीबी मुझे माफ करना अगर आपको ज्यादा दुख लगे, वरना आपसे बड़ा दुख तो किसी का नहीं है। बीबी हम कौन है? आप गुनाहगार, बस आपका गम बटाने के लिए आ गए। बीबी पुरसा कबूल करना। मुझे नहीं मालूम बीबी कहाँ मौजूद है, लेकिन मौजूद है, यकीन है कामिल है। बस सारी रात अजर रिसालत वसूल करने के बाद ये लईन हारिस नाम है इसका। कहते जब सुबह तलु हुई थी ना, आप मेरी तरफ देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हो 7, 8 या 9 साल का। रवायत में मिलता है कि बड़ा 9 साल का था, छोटा 7 साल का था। इनके चेहरे पे जब जोर से तमाचा मारा जाता है जुमला पहुंचा नहीं पाई मैं आज भी पता लगा। खुदा को बच्चों को सलामती दे। छोटे बच्चे के मुंह में जब जोर से तमाचा मारा जाता है, जिनकी छोटी औलाद है, तो निशान कर जाता है। अगर आप मुसलसल मारते थे, मुसलसल पूरी रात, बच्चों के चेहरे कैसे हो गए होंगे? जिंद फट चुकी होगी, खून निकल रहा होगा, बच्चे माँ को याद करते होंगे। बच्चों को लिया, सर से तन से सर जुड़ा भी, ये दोनों हाथ खड़े से पकड़े और आ गए इब्ने ज़ियाद के दरबार में। अब है तो वो कातिल, लेकिन जब बच्चों को देखा ना तो तड़प गए। कातिल है, लेकिन इसको मारा क्यों था? तुमने तो कहा था इनाम के लालच में मैंने दोनों बच्चों को ज़िबा कर दिया। अब माई बेटी जुमला वसूल करना और बीबी को पुरसा देना। छोटे छोटे बच्चों के कटे हुए सर को देखा ना, इब्ने ज़ियाद ने कहा मैंने मारने का नहीं कहा था, मैंने कैद करने का कहा था, तुमने मार क्यों दिया? हाँ इतने बच्चे भी ज़िबा होते हैं, ऐसे बच्चे भी ज़िबा होते हैं। चौदहवीं के चांद जैसे चेहरे, वो लैल जैसी जुल्फें,
ये दिन बैठी रो रही है, मेरे बच्चों को मुझसे मिला, ए परवरदिगार मुझसे मिला। इतने में हुसैन आका ने बीबी रुकैया की बेटियों को अपने करीब बुलाया, करीब बुला के बच्चियों के सर पे हाथ रखा। बच्चियां थी जनाबे आतिका बीबी की बेटी है, समझी। आज मामू एक अलग अंदाज से प्यार कर रहे हैं। कहा मामू क्या हुआ, कभी आपने ऐसे प्यार नहीं किया, क्या हुआ मामू, तवज्जो रखिएगा, आखिरी जुमला है मामू, आज क्या हुआ, आज आप ऐसे प्यार कर रहे जैसे यतीमों को प्यार किया जाता। हमारे भाइयों की तो खैर है, हमारे बाबा की तो खैर है। क्या हुआ, बाबा की खैर है, हमारे मामू की खैर है, हमारे भाइयों की तो खैर है, बाबा की तो खैर है। इतना कहना था, मौला ने दो छोटे छोटे दूर निकाल के बच्चियों के कानों में पहना दिए। एक को इस जानों पे बिठाया, एक को इस जानों पे बिठाया। सकीना दूर खड़ी देख रही थी। अब बीबी सकीना के जहन में आया, जब बच्चा यतीम होता है ना, उसे ऐसे ही प्यार किया जाता है। जैसे बीबी की बच्चियां यतीम हुई, जैसे उनके भाई सिवा हो गए, तो उनके सरों पे हाथ रखे गए और उनके कानों में दूर पहनाए गए थे। सकीना भी यही करबला में देख रही थी, जब मैं यतीम होगी मेरे साथ भी यही सलूक किया जाएगा। हाय रुकैया की उजड़ी गोद का सदका, सकीना जब यतीम हुई तो ऐसा नहीं हुआ, सकीना को जब यतीम हुई तो तमाचे लगे, उन्हें दूर दिए गए थे, इससे दूर छीने।